Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 18 June 2021 and I am teaching you chapter number 3 and name of the chapter is Fun Time. Let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So in the previous video I explained you about indoor games, the games which we can play inside our house. Is it clear? The games which we can play inside our house. And we one more reason for playing indoor game is also the harsh weather condition also. For example, in the hot summer season you can't go outside in the afternoon time due to the hot air which blow, that is known as loo, and do so people don't move out their houses in the afternoon time to save them from the heat stroke of the sun. Is it clear? So that is the also reason, due to harsh climate condition or harsh weather, we prefers indoor games also. Is it clear? So another benefit of the indoor game is that, student, in this game you don't require many players like the outdoor games, because outdoor games you play in an open ground and in outdoor games you need more players. But the advantage of indoor game is that you don't need, you can play these indoor games with less players also. Indoor games do not require more players. Like in a ludo game you can even play ludo with 2 players also, or maximum 4 players. In the same manner, if you are playing carom, so 2 players can also play the carom, or maximum 4 player can play at the same time the game, that is carom. Chess, only 2 players are required for playing the game chess. So the games which we play inside home are called indoor games. So that is the reason, student, indoor games, we prefer indoor games due to the weather condition also. Okay, in rainy season also whole grounds are submerged with water. That is the reason at that time we prefer to play which game inside our house, that is the indoor games. But these days we are seeing that students are more busy in watching cartoon channels and they are playing video games, or many games they can play in their mobiles also. This is not good. If you play this game in a limit, then it is okay. But if you make playing games in the mobile your habit, all the time you are playing games in the mobile phone or in the computer or laptop, and so this is not good, student. ठीक है, हमें हर समय अगर हम कोई भी काम लिमिट में करते हैं बेटा, तो उसके हमेशा ही फायदे होते हैं. ठीक है, अगर हम उसे एक्सेस में करने लगते हैं तो that is also not good for our health, because all the time playing games on the mobile, it may make your eyesight weak also. इससे आपकी आंखों की रोशनी, जो आई साइट है, वो भी क्या वीक हो सकती है. कैसे? हाउ this is possible? This is possible. So student, always play that game that is good for your health also. Is it clear? Don't play games on the mobile all the time. Don't make it as their habit of playing games in the mobile. क्योंकि even in the PTM, when parents come to school, they complain with the teacher that all the time
never, the children are not going outside for playing, only they want to play games in the mobile. सो दैट इज़ नॉट गुड स्टूडेंट, ये गुड नहीं है, इससे आपकी हेल्थ भी वीक हो रही है, क्योंकि जब हम लोग आउटडोर गेम्स प्रेफर करते हैं, खेलने जाते हैं ओपन ग्राउंड्स में, सो वी गेट एट दैट टाइम फ्रेश एयर, एंड दैट फ्रेश एयर इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, and there is all around development of the child due to playing, lot of physical development of the child take place, क्योंकि अभी आपका ग्रोथ का टाइम है, आपके बॉडी की ग्रोथ हो रही है, इज इट क्लियर। और इसके लिए आपको एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इवन अगर आप अपने आपको गेम्स में इन्वॉल्वड करते हो तो इससे भी आपके बहुत सी एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें मोबाइल पे जो आजकल सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि ऑल द स्टूडेंट दे आर बिजी इन प्लेइंग गेम्स in the mobile, that is not right, okay। So if you are playing games in the mobile, please ignore this, it is not good for your health। आज के टाइम में, इन प्रेजेंट टाइम, इन अ स्मॉल स्टूडेंट दे आर वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, छोटे बच्चे हैं, चश्मे लग गए हैं, आई साइट इतनी वीक हो गई है बिकॉज दे आर वॉचिंग टीवी एक्सेस एंड प्लेइंग गेम्स इन द मोबाइल, that is the reason, okay। So don't do this। Next thing which I explained you in the previous video, that is the traditional games, means the games which we play from generation after generation, it means maybe these games are played by your parents or by your parents, ठीक है। ऐसी गेम्स जो हो सकता है आपके पेरेंट्स ने खेली, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो आपके दादा दादी उन्होंने खेली होंगी, हो सकता है उनके पेरेंट्स उन्होंने भी गेम, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो गेम्स किसी कंट्री में या किसी रीजन में प्लेड होती हैं, दैट गेम्स आर नोन एज द ट्रेडिशनल गेम्स। ऐसी गेम्स को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल गेम्स कहते हैं, ठीक है। एंड सम ऑफ द ट्रेडिशनल गेम्स लाइक काइट फ्लाइंग, ठीक है, ऑफ दिस आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री, काइट फ्लाइंग। रीजन, पर्टिकुलर रीजन मतलब कोई ऐसी गेम जो किसी एरिया में सबसे ज़्यादा खेली जाती है, जैसे कैमिल रेस है, ठीक है। सो इट इज़ प्लेड इन राजस्थान, पुष्कर फेयर होता है, एक पुष्कर फेयर, उसमें कैमिल रेस जरूर होती है, ठीक है। और दैट इज द रीजन, रीजन वर्ड यूज किया है, रीजन मीन्स इट वांट टू से दैट इन सम पर्टिकुलर एरिया, तो कैमिल रेस है, काइट फ्लाइंग है, लट्टू, गिल्ली डंडा एंड सो ऑन, दीज आर फ्यू गेम्स विच आर प्लेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। आफ्टर दैट we now in today video we will discuss about some of the hobbies, okay, we will discuss some of the hobbies। So hobbies, we also have fun, we also have fun when we engage ourselves in some hobbies, ओके। सो स्टूडेंट, ड्यू टू आवर इंटरेस्ट, ठीक है, जिस चीज में हमें इंटरेस्ट होता है, पढ़ाई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टडीज, ठीक है, स्टडी के अलावा और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम अपने को इंगेज करके भी अपने माइंड को, बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, और तो दैट इज यर फ्यू हॉबीज आर आल्सो देयर, ठीक है, जिनमें हम अपने को इंगेज करके भी अपने को रिलैक्स कर सकते हैं। सो सम ऑफ द हॉबीज, सम पीपल लाइक टू डू क्रिएटिव आर्ट, दैट इज क्रिएटिव
creative art. So what is this? Creative art. Creative art means having the ability having the ability or power to create. It is characterized by originality, of thought, or showing imagination, ठीक है। अब देखो क्रिएटिव आर्ट, ये भी हॉबीज में है। कुछ पीपल्स होते हैं, सम पीपल लाइक टू डू क्रिएटिव आर्ट, ठीक है। सो व्हाट इज ए क्रिएटिव आर्ट? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि क्रिएटिव आर्ट क्या है। जो थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, जो हम दिमाग में इमेजिन करते हैं, जो चीज़ें हमारे दिमाग में अपने माइंड से सोच के कुछ ऐसा करते हैं, तो वो क्या आपका क्रिएटिव आर्ट्स है, ठीक है। क्रिएटिव आर्ट्स मीन्स हैविंग द एबिलिटी और पावर टू क्रिएट, कुछ क्रिएट करना, माइंड यूज करके, कुछ थिंक करके, ठीक है। सो या किसी चीज को इमेजिन करना, ठीक है, वो भी क्या है, क्रिएटिव आर्ट है। जैसे आप लोग के स्पेशली आप लोग ने इंग्लिश और हिंदी में पोइम्स देखते होगी, ठीक है। तो उन्होंने उन पोइम्स को जैसे सॉन्ग्स लिखते हैं, ठीक है, तो वो अपने दिमाग से वो चीजें सोचते हैं और देन दे राइट पोइम्स और देन दे राइट द सॉन्ग्स। आप इतने सॉन्ग सुनते हो, ठीक है, तो किसी न किसी ने तो उन सॉन्ग्स को लिखा है ना। तो ये कैसे हुआ? अपने दिमाग से, अपने थॉट, अपने इमेजिनेशन को उन्होंने किया। ये सब क्या है? आपके क्रिएटिव आर्ट्स हैं, ठीक है। क्रिएटिव आर्ट्स मीन्स हैविंग द एबिलिटी और पावर टू क्रिएट, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय originality of thought और शोइंग इमेजिनेशन। क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे आपको कभी कभी हम लोग एक क्लास में मान लो कंपटीशन करा देते हैं कि कोई आप सीनरी बनाओ, या तो आप लोग स्प्रिंग सीजन को दिखाओ। स्प्रिंग एक ऐसा सीजन होता है जिसमें सबसे ज्यादा फ्लावर्स होते हैं। द गार्डन्स आर फुल ऑफ फ्लावर, ऑल द, आप पार्क्स में देखोगे तो पूरे पार्क्स फ्लावर से भरे होते हैं। स्प्रिंग सीजन में सबसे प्लेजेंट सीजन होता है स्प्रिंग का, ठीक है। जब विंटर जाने लगती है, जब विंटर सीजन आपका जब एंड होने लगता है, तो आपका बहुत शॉर्ट समय के लिए एक स्प्रिंग सीजन आता है, ठीक है। सो कभी कभी ऐसा कंपटीशन है कि आपको एक क्या होता है, मान लो यू आर मेकिंग पिक्चर बाय सीइंग द बुक। आप बुक से देख के काम कर रहे हो, ठीक है, बुक से। लेकिन नहीं, यहाँ आपको मान लो शीट्स दे दी गई और बोला गया कोई सीनरी क्रिएट करो स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड।
तो वहाँ आपके मन में अब क्या आ रहा है, जो भी आप बना रहे हो वो अपनी आपकी इमेजिनेशन है, ठीक है, आप अपने से सोच के कुछ ऐसा नया क्रिएट कर रहे हो, तो वो आपका क्रिएटिव आर्ट में आया, ठीक है। सो क्रिएटिव आर्ट में, क्रिएटिव आर्ट लाइक पेंटिंग, ठीक है, कोई पेंटिंग आपने बहुत बड़े बड़े पेंटर्स की पेंटिंग देखी होगी, बहुत ज़्यादा पैसे में बिकती हैं ये पेंटिंग्स। तो वो जो पेंटिंग्स होती है वो उनका इमेजिनेशन है, ठीक है, अपने सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो इन सब को इमेजिन करके दिमाग से कुछ बनाते हैं। तो ये सब क्या आपके आता है, क्रिएटिव आर्ट्स में आता है। इज इट क्लियर? तो क्रिएटिव आर्ट में जैसे आपका पेंटिंग हो गया, ठीक है। क्रिएटिव आर्ट मीन्स हैविंग द एबिलिटी और पावर टू क्रिएट, और कोई भी नई चीज तुम क्रिएट करते हो या इमेजिन करते हो, तो आप अपनी क्या यूज कर रहे हो, ब्रेन यूज कर रहे हो, अपनी थिंकिंग, अपने थॉट्स थिंकिंग यूज कर रहे हो। तो ब्रेन को यूज करके कुछ भी सोच के तुम ऐसा न्यू क्रिएट करते हो, तो वो, और ये क्या है, इंडिविजुअली है आपका, ये क्या है, इंडिविजुअली है, ठीक है। आप बना रहे हो, आप, ये आपकी क्रिएशन है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आपने इमेजिन किया, उसको आपने दिखाया, ठीक है। तो दैट इज comes under category that is creative art. Creative arts means having the ability or power to create. It is the, it is characterized as, इसको कैसे बताया जा सकता है, it is characterized by originality of thoughts और showing imagination, ठीक है। तो that is a creative art. And some of the example of creative arts, like examples of creative art, example of creative art like painting, स्केच बनाना, पेंटिंग, स्केचिंग, स्कल्पचर, ऑरिगेमी, एम्ब्रॉयडरी, क्ले मॉडलिंग, एक्स्ट्रा, ठीक है। कुछ क्रिएटिव आर्ट्स हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स आर पेंटिंग, कोई पेंटिंग बनाना, स्केच बनाना, स्कल्पचर, ऑरिगेमी, एम्ब्रॉयडरी और क्ले मॉडलिंग। सो दीज आर some of the examples. Is it clear? These are some of the example of a creative arts. पेंटिंग, स्केचिंग, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। स्कल्पचर, व्हाट इज दिस? मूर्ति कला, जो हम लोग, देखो हम लोग हिंदूज, जो, अगर आप लोग हिंदू ट्रेडिशन को फॉलो करते हो तो हिंदूज के रिलीजन में जो है, हिंदूज क्या मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है। और भी मतलब और भी कई पेंट स्टेच्यूज बनाए जाते हैं, ये सब, ठीक है। तो स्कल्पचर इज आर्ट ऑफ मेकिंग, मूर्तियों को बनाने की जो कला होती है उसको ही स्कल्पचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्रिएटिविटी है, ठीक है। मूर्तियों को बनाने की जो कला है हर कोई तो नहीं ना कर सकता बेटा, ठीक है। सो ये भी एक क्रिएटिविटी है, ठीक है। और आफ्टर दैट तुम लोग को बाकी ये हो गया पेंटिंग, स्केचिंग, स्कल्पचर, और बाकी बता देता हूँ भी।
If you want to note, you can write. जैसे origami है, so what is this? Origami is the art of paper. It is the art of paper folding. ठीक है, इसमें किसको यूज करते हैं? पेपर्स को यूज करते हैं. इज इट क्लियर? मे बी इट इज गिवन इन योर बुक. नो, इन द बुक इट इज नॉट गिवन. ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ. ऑरिगेमी क्या है? इज द आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग. जो पेपर होते हैं, कलर्ड पेपर भी ले सकते हो. आर्ट एंड क्राफ्ट में कई बार आपने देखा होगा स्कूल में, सम पीपल कम एंड विद द पेपर कटिंग दे शो डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, उससे फ्लावर बना दिया, क्या कोई एनिमल बना दिया, या तो कैप बना दी. इज इट क्लियर? सो और कोई डिजाइन बना दिया. सो दिस जो भी पेपर कटिंग का जो काम करते हैं उसे ऑरिगेमी बोलते हैं. इज इट क्लियर? ऑरिगेमी इज द आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग. ठीक है, पेपर की फोल्डिंग के आर्ट से पेपर फोल्ड करके वो डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं. जैसे फ्लावर्स भी बनाते हैं, कैप भी बना सकते हैं, एनिमल्स भी बना सकते हैं. कट नहीं करना है इसमें, फोल्ड करके बनाना है. ठीक है, हेक्सागन बनता है. हेक्सागन 6 साइड होते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनता है इससे, पेपर्स को फोल्ड करके. ठीक है, तो पेपर को फोल्ड करके जो चीज़ें हम लोग बनाते हैं, फोल्ड करके, कट करके नहीं बोला, फोल्ड करके. ठीक है, इज द आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग विच इज ऑफन एसोसिएटेड विद. ये कला जो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जापान से हुई थी. ठीक है, पेपर फोल्डिंग वाली. ठीक है, तो पेपर फोल्डिंग से हाउ यू कैन मेक ए फ्लावर्स और मेक ए कैप और मेक हेक्सागन शेप्स. ठीक है, सो डिफरेंट शेप्स यू कैन मेक विद द हेल्प ऑफ ए बाई फोल्डिंग द पेपर, दैट इज नोन एज ऑरिगेमी. तुम लोग बोट बनाते हो ना रेनी सीजन में, पेपर को फोल्ड करके, पेपर को फोल्ड करके सिंपल बोट बहुत बच्चे बना लेते हैं. ठीक है, एनिमल्स में जैसे बच्चे बहुत अच्छा पेपर को फोल्ड करके फ्रॉग बनाते हैं. ठीक है, बर्ड्स बनाते हैं. सो पेपर फोल्डिंग से जो चीज़ें बनाते हैं, दैट इज द आर्ट ऑफ ऑरिगेमी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो इसमें टिपिकल चीज दी थी, एम्ब्रॉयडरी. सो व्हाट इज दिस आर्ट? तो इन दिस व्हाट वी डू, एम्ब्रॉयडरी इज द आर्ट, इज द क्राफ्ट ऑफ decorating fabric or decorating fabric using a needle. Embroidery is the craft of decorating fabric using a needle to apply thread. ओके, सो एम्ब्रॉयडरी इज द आर्ट है, ये भी एक बहुत अच्छा आर्ट है बेटा. सो इसमें क्या करते हैं, फैब्रिक मतलब क्लोथ होता है. ठीक है, क्लोथ के पीस पे हम लोग एक निडल लेते हैं और उससे थ्रेड को अप्लाई करते हैं क्लोथ पे. तो ये भी एक आर्ट है. इट इज शोन इन दिस पिक्चर. सी दिस चाइल्ड इज सिटिंग, इसने एक क्लोथ ले रखा है. ठीक है, एक रिंग है, रिंग इसका फ्रेम है, इसको इस फ्रेम में इस क्लोथ को टाइट कर लिया.
ठीक है. आफ्टर दैट सी विद द हेल्प ऑफ दिस निडल, निडल में क्या थ्रेड है, दिस गर्ल इज मेकिंग design on the fabric. So this is the art. Embroidery is the art, is a craft in which we is the craft of decorating fabric using a needle, and we use needle to apply a thread. अब needle से इस क्लोथ पे ये needle में क्या लगा है, थ्रेड लगा है, इससे अलग अलग डिजाइन बना रही है ये. देखो, इट इज शोन इन द पिक्चर. इज इट क्लियर? सो एम्ब्रॉयडरी इज द क्राफ्ट. कैसा क्राफ्ट है? एम्ब्रॉयडरी इज द क्राफ्ट ऑफ डेकोरेटिंग फैब्रिक यूजिंग अ निडल टू अप्लाई थ्रेड. निडल का क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि थ्रेड को उस क्लोथ पे थ्रेड से डिफरेंट डिजाइन क्रिएट करने के लिए हम लोग निडल यूज कर रहे हैं. इज इट क्लियर? सो एंड दिस इज सी with the paper folding, this girl is making some while folding the paper. आप लोग एरोप्लेन भी बनाते हो ना पेपर फोल्ड करके, बहुत से बच्चों को आता है ना, पेपर फोल्ड करके एरोप्लेन बनाते हैं. कट नहीं करना है इसमें, पेपर को फोल्ड करना. तो टेक्निक ऑफ फोल्डिंग द पेपर टू क्रिएट समथिंग दैट इज नोन एज ऑरिगेमी. और एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी इज द क्राफ्ट ऑफ डेकोरेटिंग फैब्रिक. फैब्रिक मीन्स क्लोथ यूजिंग ए नीडल. नीडल को यूज करते हैं टू अप्लाई द थ्रेड. इज इट क्लियर? एंड आफ्टर दैट क्ले मॉडलिंग. क्ले मॉडलिंग के बारे में तो आप लोग के क्लास में भी होता है. आपकी ये क्या कहते हैं, ड्राइंग बुक है, या पहले आर्मी स्कूल में हॉबी क्लासेस भी चला करती थी. ठीक है. So in that hobby classes, many student they choose their hobbies as clay modeling. Clay होती है, that clay you buy from the market, and with the help of that clay you make different types of shapes. बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी बना सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल एनिमल्स भी बना सकते हो. ठीक है. एक घर बना लिया, ठीक है, उसके घर के अगल बगल गार्डन दिखा दिया, कोई बिल्डिंग बना ली. ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ ए क्ले यू कैन मेक डिफरेंट शेप्स, वेदर फ्लावर है, हाउस है, बिल्डिंग है, ट्री. विद द हेल्प ऑफ ए क्ले यू मेक अ ट्री. सो दिस इज द आर्ट ऑफ क्ले मॉडलिंग. ठीक है. सो क्रिएटिव आर्ट्स क्या है? जो हमारी इमेजिनेशन होती है, जो हम अपने माइंड से, जो हमारे माइंड से जो थॉट्स आते हैं उससे कुछ नया बनाते हैं, दैट इज क्रिएटिव आर्ट्स. एंड सम ऑफ द क्रिएटिव आर्ट्स विच आई डिस्कस विद यू, दैट इज पेंटिंग्स, स्केच बनाने, एंड स्कल्पचर. इट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग द, मूर्तियों को बनाने की जो कला होती है उसको बोलते हैं स्कल्पचर. ऑरिगेमी बता ही दिया, पेपर फोल्डिंग से डिफरेंट जो डिजाइंस बनाए जाते हैं, दैट इज ऑरिगेमी. एम्ब्रॉयडरी, हियर वी यूज द फैब्रिक. फैब्रिक मतलब क्लोथ यूज करते हैं. देयर इज ए फ्रेम फॉर डेट, उसमें क्लोथ को बहुत टाइट बांध देते हैं. एंड आफ्टर दैट वी with the help of a needle we use a thread to draw a different design, that is embroidery. And clay modeling, you can buy clay from the market. आपको क्ले कहाँ से मिल जाएगी बेटा? You can buy clay from the market, and with the help of that clay you can make many things, many designs you can make with the help of that clay. You can make a beautiful flower. क्योंकि फ्लावर इसलिए कह रहे हैं बिकॉज क्ले भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आती हैं. ठीक है. इन ऑल द कलर्स यू विल गेट द क्ले. ठीक है. तुम्हें डिफरेंट कलर्स की क्ले मार्केट में व्हेन यू गो यू कैन बाई ऑफ क्ले ऑफ डिफरेंट कलर्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए शेप्स एंड डिजाइन. सो क्ले मॉडलिंग इज आल्सो ए क्रिएटिव आर्ट. एक कॉम्पिटिशन करा दिया 10 बच्चों को ग्रुप में, सबको क्ले दे दी. ठीक है. एंड अब उन लोग से बोला आप अपने से कुछ भी सोच के बनाओ. तो यहाँ क्या, टीचर अभी नहीं उन्हें बता रहा है, सिखा रहा है. ठीक है. उनके मन में जो आ रहा है, जो थॉट आ रहा है, जो आ रहा है, उससे वो अपने थॉट से, अपने इमेजिनेशन से जो चीज़ें बना रहे हैं, दैट इज क्रिएटिव आर्ट. सो
clay modeling is also the part of a creative art. Thank you, student.